call upon a personality who has come all the way from Guwahati. Let us invite with a rousing welcome a dynamic personality from Guwahati. His name is Latif, building the business with Hema, and they have got 3 cute daughters by the name of Pradasi, Lisa and Neha. Ladies and gentlemen, please help us welcome Emerald RX, Mr. Latif Chaudhary. Brand new Emerald! And here is a letter from the Amway Corporation saying that you are officially Emerald. My name is Latif Chaudhary, and I'm building this business with my wife Hema. Due to some challenges, physical challenges she had, she could not come here. And I'm building this business also with my 3 daughters. One is here, she is Pratasi, Lisa, Neha. So actually, the building this business behind the motivating factor, in fact, is my 3 daughters, where I mentions everywhere. So I would like to give the mic to say 2 lines to you. After that, I will share my stories with you. Thank you. Good morning, everyone. My name is Pratyashi. My father has been very generous when he said we are helping him, but actually we haven't done anything so far. He has been doing it on his own, and I feel quite embarrassed to stand here sharing this felicitation because I've never helped him. But at the same time, I've been sitting here since yesterday, and I've realized what he has been saying since so long is true. There is so much potential. I work 15 hours a day, and I don't see happy people like I've seen here. I never see a team who is so supportive and who wants to help each other. I felt like a family. I don't know anyone, but I felt like a family. And I think that is what is motivating me to start helping my dad. I don't understand that much as yet, but then again, I think it has so much power that it brings people from all over together that I am going to start helping him, which I've never said before. So if I don't do it, it's going to kill me. But I think I'm going to start helping him so that next time when he says it to people, he really means it, that his daughters are helping him. I'm very, very proud of my father. He must be the only one who believed in it. None of us did. He started when he was going through a really rough phase in life. And he talked, he made that investment and he talked about a lot of money, and I literally didn't believe him. But then I see it happen. I see it happen every day. I have seen him change as a person. You cannot imagine his temper. He doesn't have it anymore. So if nothing else, it has changed him as a person, and I'm really grateful to the business for that. It has brought our family together, which is another reason why I'm grateful to Amway. Well, thank you, and I'm really proud of you, Papa. So friend, I will share my background. So the mix with Hindi, English, I don't know, very good language to speak with people. मेरा background businessman, traditional business से हूँ मैं, और पूछा था मुझे आपका qualification बताइए, तो मैं qualification में मैं undergraduate हूँ. गांव से belong करते थे, बहुत दूर गुवाहाटी से, जिस गांव में हम लोग को स्कूल भी दूसरा अलग तरीके से, बचपन में हम लोग बनाना पता होता ना, कल उसमें हम लोग लिखते थे, और स्कूल में पढ़ने के लिए धारी बोलते हैं ना, तो लकड़ी का बना होता है, और जो ठोइले होता है वो ले जाके हम लोग बेचते थे. वी आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. सो शहर आया है, मैंने 23 साल उम्र में शादी किया है, खुद किया है, किसी ने कराया नहीं. आई फॉल इन लव विथ ए गर्ल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड, एवरीथिंग. हम लोग शादी किया, मतलब इकट्ठा होके आ गया गुवाहाटी. So in charge of dream. At the age of 24, my first child was born. So friend, उस समय से मैंने जिंदगी से बहुत कुछ लड़ना पड़ा है. Without having anything, कोई नौकरी नहीं था, कोई business नहीं था, just I wanted to get out of my family. That's a different reason. और मैं निकल के चला आया घर से.
आई डोंट नो वेयर टू स्टे, वेयर टू गो। तो आए सेटल हुआ, वो बहुत एक छोटा सा नौकरी से 200 रुपया तनख्वाह से, इट्स 78, 79 लाइक दैट। तो शुरू किया, लेकिन मुझे मालूम था जब मैं शहर जो आया हूं, एक लड़की को मैंने सपना देखा कि हम लोग जिंदगी में कुछ करेंगे तो आगे जाना है। सपने का पीछे पीछे मैं भागता था, बहुत मेहनत करता था। मेरे इस बिजनेस में करने के लिए जितना भी क्वालिटी बताएंगे, जो चाहिए पीपल स्किल्स, जो भी चाहिए, वो मेरे पास एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। पीपल स्किल मुझे नहीं मालूम था, मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, सीखा ही नहीं था कभी। और सबसे मुझे डर लगता था मेरा वो इस टाइम का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हाईली एजुकेटेड और वेल ड्रेस्ड पीपल जो वेल सेटल्ड है। गुवाहाटी में कभी आते थे तो पैजामा पहन के आते थे, तो दूसरे लोगों को देखते थे, गाड़ी ऐसे खड़ा कर देखते थे, इस तरह का सही था। इस बिजनेस में कैसे आया मैं बताऊंगा, उसका आगे मैं कुछ बताना चाहता हूं। एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज तक मैंने इस बिजनेस में 8 साल हुआ है, कभी भी किसी को सामने जाके हैंडशेक करने का जो कारेज होना चाहिए था वो नहीं। मैं पीछे हमेशा, जैसे नरेश जी ने बताया कि मैं पीछे भागता था, ये बिजनेस में भी आ गया, मैं पीछे हमेशा पीछे सीट लेते थे। बोलते थे ना फ्रंट सीट लेना चाहिए, मैं मेंटली फ्रंट सीट में बैठा था, लेकिन फिजिकली मैं पीछे, क्योंकि कुछ बैकग्राउंड में इसी तरह से पैदा हुआ, इस तरह से एनवायरमेंट में था जहां में हम लोग को हर तरह से, पिताजी हमको बहुत पीटते थे, माता सोचते पीटने से ज्यादा ठीक होता है, तो पिटाई से शुरू होता था सुबह, और पिटाई से गुड नाइट भी होता था। आई वॉज अ वेरी शाय, मैं अच्छा से रिलेशन नहीं जानता था, लेकिन मुझे अगर कहीं में लगा दे झगड़ा करो तो मैं झगड़ा कर सकते थे। ये मेरे इसमें मेरा एक है, मैं फाइटर था, हर तरफ से लड़ने के लिए तैयार था। कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज था मेरा पास में, ड्रीमर था, मैं विनर होना चाहते थे। वो कहां से आया है? जो लाइफस्टाइल आज देखे हैं, जो जिस लोगों का साथ आज आके सामने बैठे देखे हैं, वो देखे थे मैंने पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखते थे। क्लास नहीं जाते, पढ़ने को नहीं जाता था, अच्छा ही नहीं लगता था मुझे, पढ़ाई में एकदम दिलचस्पी नहीं थी कुछ भी। मैं सोच रहा था पढ़ाई का मतलब गुलामी लगता था, यू डोंट टेक अदरवाइज, मुझे ऐसा था, मेरा फीलिंग्स था, क्योंकि मैंने पिताजी को देखा था जॉब में, और मैं ऐसा नहीं होना चाहता था। तो मैं क्या स्कूल से भाग के और दोस्तों के साथ में पिक्चर देखते, तो वहां में जो एक्टर एक्ट्रेस का जो पिक्चर दिखाते थे ना, वो मुझे ऐसा होने का बहुत इच्छा था। और जो घर जो गाड़ी दिखाते हैं, मैं पाना चाहता हूँ, कैसे पा सकता हूँ। तो बिजनेसमैन को देखा है, उन लोग को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, तो मैंने सोचा मैं बिजनेस क्यों ना शुरू कर दूं। तो छोटा सा कंट्रैक्टरी से शुरू किया, ठेकेदारी से। तो ठेकेदारी तो 1000 रुपया का ठेका से शुरू किया है। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग, आपको यहाँ में नहीं मालूम, हम लोग को यहाँ में जिसको कुछ भी नहीं करने को आता है, कोई काम का नहीं, वो ठेका में लगता है हम लोग का उधर में। आप चेंज हो गया है, मेरा टाइम में जो जिस टाइम में मैंने कॉन्ट्रैक्टर में आया था उस टाइम में, और हम लोग को इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हम लोग के लिए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था। उसका सामने बैठो बोलने से भी बैठने को डर लगता था, हाथ मिलाने का बाद अलग। इसी तरह से जाके उसमें कॉन्ट्रैक्टरी किया। 20 years of my life I was in business. लास्ट में ज्यादा पैसा कमाने का चक्कर में मैंने कोल बिजनेस में चला गया। कोल बिजनेस आप लोग को मालूम है, कोल में ज्यादा क्या चाहते हैं, मसल पावर चलता है। तो ये भी तो इसी तरह के मैंने एक ग्रुप बना लिया, और कोल बिजनेस में मैंने करोड़ों रुपया कमाया, एक्सपोर्ट भी किया। 20 years of my life I have earned, I become करोड़पति। लोगों को मालूम नहीं, कि मुझे मालूम है। अब जब मैंने गिनना शुरू किया कितना रुपया लॉस हुआ, 1 करोड़ रुपया मेरा नगद खत्म हो गया, मेरा ऑल प्रॉपर्टी। Whatever I have earned in 20 years, I lost in 3 years to 5 years time. I was full of debt. I went bankrupt, or nobody was with me at that time. Why? Because मेरा जो स्वभाव था, I was very egoistic, very proudy, arrogant उस टाइम में। जिस लोगों का बैकग्राउंड से कुछ पैसा का, कोई कार नहीं था किसी घर में, कोई कभी नहीं था, जिसका पास में पैसा आना शुरू हो गया, तो मेरा ईगो भी पैसा का साथ साथ में बढ़ना शुरू हो गया था। मैं लोगों को और बेपरवाह, क्योंकि कोल बिजनेस में जितने लोग थे वो सब मसल पावर का, माफिया जो कहते हैं ना आप लोग, उन लोगों का साथ में पेपर में नाम आते थे, पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसे रहते थे, इस तरह का सा। तो मैं और प्राउड हो गया था, मेरा सोचा यही पावर है। तो फाउंडेशन क्या था मेरा, कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था पैसा लाने का। मैंने सोचा ऐसे लोग अमीर होता है, लेकिन वो रहा नहीं मेरा, क्योंकि इट्स अगेन लॉन्ग स्टोरी में कभी तो आई लॉस्ट एवरीथिंग। तो उसी टाइम में क्या हुआ था,
nobody was there to relate me, even my brothers, sisters, कोई भी, even in my family, आज दो दादा राम ने को बोला है कि पापा I am proud of you. They were so disgusted at that time. उसने कहा कि मैंने जब ड्रीम करता तो बोलते उन लोग रिलेट नहीं करते थे. एक दिन कुछ बात के लिए झगड़ा करता तो she is very sharp. मुझको डायरेक्ट बोल दे, what you are talking about? You are a loser. That my daughter. Today she said, I am proud of you. See, this is the business. It does not matter. आप कहां पे हो, किधर पे हो, फैमिली में क्या हो रहा है. Even yesterday we stay or some year with my daughters, then उसने बोला है पापा यही बिजनेस है जो हम लोग को फिर यूनाइटेड किया है. आप लोग को मालूम होगा जिस मिसेस को मुझे पास देखते थे, मैंने 8 years हम लोग सेपरेशन में रहे with my wife. 8 years long period. वो अलग मैं अलग, मेरा जिंदगी. Because of this business, it make me humble. तो फिर दोबारा हम लोग यूनाइटेड हुआ, मेरा डॉटर से होती हो, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस. मैं उस समय मरने का तैयारी कर रहा था. आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डाई, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को इस दुनिया में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे और मेंटली आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू डू एनीथिंग. सो एट दैट पीरियड मेरा जो जमीन थे वो मैं बिक्री कर दिया, कार जो थे लाइफस्टाइल सब चेंज कर दिया. मैं ऑफिस में बैठा था फर्नीचर फिक्सर सब सेल करने के लिए, लेने वाला कोई नहीं था. तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही किसी को दोस्त को दे देंगे. वन पर्सन ही केम टू माई ऑफिस, उसको मैंने जानते थे, तो वो आई कॉल्ड हिम टुडे. अभी इसको स्मरण करता हूँ लाइक एन एंजल्स. मैं कहता हूँ ही केम लाइक एन एंजल्स. उसने आके मुझे बताया कि मिस्टर लतीफ एक बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस, आप इसको करिए. क्या बिजनेस है? बिजनेस का नाम से मेरा नफरत हो गया था, जिंदगी से जिसको नफरत हो गया था. तो उसने बताया इस बिजनेस को करके कुछ चीज आपको शायद रिलेट कर देना, मुझे तो क्या था कुछ शब्द. उसने बोला कि इस बिजनेस को करके लोग साइकिल से हवाई जहाज है उसका पास में. फिर बोला क्या इसमें आइलैंड खरीदते हैं, लोगों के पास घर ने आइलैंड. और प्लान में दिखाया था लाख 3 लाख साला करोड़ों रुपया बताया. अपना रनवे होता है उसमें प्लेन बगैर. आई डोंट नो भगवान को क्या चाहता, मैंने बिलीव किया था उसको. लेकिन एक बात मैंने क्या किया, अगर लोग इससे हवाई जहाज खरीदते हैं, 1 साल 2 साल में लाखों रुपया कमाते हैं, आइलैंड रहते हैं, मुझे उस समय सरवाइव करने के लिए 20,000 रुपया का जरूरत है. एकदम जैसे भी किसी तरह अगर मेरे टू सपोर्ट माई फैमिली, घर में रहने के लिए 20,000 रुपया का. ये 2000 साल का, मैं 2000 में मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस में, उसी समय का बता रहा. तो मैंने तो अगर इन लोग एक कर सकता है, मैं तो 20,000 रुपया 1 साल में कमा ही लूंगा. और मैंने बिजनेस साथ साथ में ज्वाइन किया. करके मैंने पूछा क्या करना होगा, बताया कि आपको इस तरह का सब प्लान में दिखाया था. 100 लोग अगर हो गया, उन लोग अगर 50 का बिजनेस करेगा, आपका पास में 50,000 रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा. सिंपल मैम. मैंने बताया 50,000 ने 20,000 तो जरूर लाएंगे 1 साल में. तो उस टाइम में मेरा पैसा नहीं था, जितना भी जो कुछ भी था आई सोल्ड इट आउट. जिसको पास में देना था उन लोग को भी साथ में सेटल किया था. मैं अभी नहीं दे सकता हूं आप लोग को, जो करना है कर ले. 2 चॉइस है, अभी मुझे आप मार सकते हो या मुझे जिंदा रहने देके आपको फ्यूचर में पैसा पा. चॉइस इज योर्स. और मैंने सोचा अगर मैं नहीं मरूं और जिंदा रहूं तो क्या होगा, मर गया तो मैं खलास, नहीं मर गया तो अगर मैं जिंदा रहा तो लोग क्या करेंगे, मुझे आके गालियां देंगे, बैंक में पैसा है, शायद जेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे पास. रास्ते में जाएंगे तो कोई बहुत कुछ इंसल्ट कर सकता है. लेकिन फिर भी एक चांस मिलेगा कि मैं मेरा घर को या मैं किस गार्ड होके चौकीदार जैसा मैं कम से कम रहने का पाऊंगा, और इस बिजनेस को मैं 1 साल में बिल्ड करने सकूंगा. तो फ्रेंड, मैंने जो लीज बनाया था इस बिजनेस को करने के लिए, मैंने जिंदगी में दोबारा मेरा एक्साइटमेंट आ गया, कुछ आशा ही देखा है. जो एक मैसेंजर आके मुझे बताया 40 लीज में मेरा ऑल ब्रदर्स सिस्टर्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, माई नियरेस्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव. और मुझे 100% बिलीव था जिंदगी, क्योंकि ये अगर मेरा जिंदगी मेरे फैमिली के साथ बचाना है तो यही तो लोग हैं जो मुझे बचाएगा. इन लोग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं एक क्वालिटी मेरे पास में अच्छा था, कुछ भी नहीं था, मैं लोगों से प्यार करता था दिल से और हेल्पफुल था. कभी भी कहीं भी कुछ जगह पर किसी को हेल्प चाहिए उसके लिए मैं हमेशा 24 आवर्स, रात को भी 12 बजे 2 बजे, क्वालिटी था कि मैं बहुत हेल्पफुल था लोगों के लिए. तो मैंने इतना हेल्प किया है लोगों को हर तरफ से, तो मुझे तो इन लोग ज्वाइन करेगा ही करेगा.
तो मैंने आई अप्रोच टू एवरीबॉडी, मेरा ब्रदर सिस्टर्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नोबडी ज्वाइन। वो तो ज्वाइन किया ही नहीं है, मुझे इंसल्ट कर दिया है। वो करना ही था, दे वर द राइट इन देयर पार्ट, उन लोग अपना जगह पर ठीक है। मैं सोचा था मुझे आना चाहिए, आप नहीं आया नहीं, तो बहुत लोग इस तरह में क्विट करता है। मैंने क्या किया है, अगर मैं एक आदमी को विश्वास करके इस बिजनेस में मैं आया हूं और मुझे जो अपने थे वो मुझे विश्वास नहीं किया है, मुझे क्या करना है, आप तो ये बिजनेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जिद्दी था, आप तो मैं करूंगा ही। ये एक राइट पॉजिटिव डिसीजन मैंने लिया है। और सोचा कि मैं अगर इस बिजनेस में आया हूं तो मुझ जैसा लोगों को ढूंढना है। मैं ही एक अकेला और लास्ट इंसान नहीं उस दुनिया में कि मेरा जैसा है, मैं ढूंढना है। ये दो चीज के लिए मैं बिजनेस में, फिर मैंने क्या किया, मैं प्लान दिखाना शुरू कर दिया। क्या क्या बिजनेस के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्या क्या जो मुझे एकदम खराब लगता था, जो मुझे अच्छा नहीं पसंद लगता, क्या लोगों के साथ मिलना, वो मैंने शुरू कर दिया। हंसने को मुझे अच्छा लगता, मैं हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि सिस्टम में सिखाया। प्लान दिखाना बोलते, प्लान तो डर जाते थे, बहुत लोग हंसते थे मेरा प्लान से जब दिखाना जाता हूं। प्लान दिखाना शुरू किया। ये कैसेट सुनने को बोला है तो कैसेट सुनना शुरू किया। कैसेट क्या सुनना शुरू किया, जिम डॉर्नेन का कैसेट पहले मिला। जिम डॉर्नेन को तो इंग्लिश आप लोग को क्यों ना, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, पहले तो आया था जिम डॉर्नेन का कैसेट, तो मैं इसको सुनना शुरू किया। दिल में बोला मुझे सुनना दिया, तो मैंने सुनना शुरू किया। किताब पढ़ने को बोला, इंग्लिश बुक, मैंने डिक्शनरी पहले खरीदा, बाद में किताब खरीदा, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ा कि डिक्शनरी देखे थे, क्योंकि उस टाइम में ना मैं हिंदी ठीक से बोलते थे ना इंग्लिश। लेकिन उसी टाइम में मैंने जब देखा है कि स्पीकर लोग बाहर से आया है, मेरा ड्रीम उस टाइम में भी एक आया था, मैं भी इस तरह से स्पीकर बनना चाहता हूं। तो इस तरह का ये आया था फ्रेंड, देने के लिए सब कुछ, पर क्या लेंगे, किस तरह से कंसीव करेंगे। कन्वेंशन आया, मेरा बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहा था, तो मैंने अपलाइन से पूछा मेरा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, तो बोला आप कन्वेंशन में जाओ। दिल्ली में कन्वेंशन 2001 में जनवरी में हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। पूरा अपलाइन बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, तुमको जाना है तो जाओ। और एक अपलाइन ने मुझे बोला है क्यों आपका पैसा का इतना तानातानी आप क्यों खर्च करते हो, तो बोला नहीं नहीं मैं तो ये बिजनेस को करना ही है, मुझे जाना ही है और देखना है क्या है। मेरा पास में पैसा नहीं था, तो मेरा एक कंप्यूटर था उस टाइम में, जिसका साथ में थोड़ा बहुत ये रखते थे, तो मैंने कंप्यूटर उस टाइम में 60,000 का कंप्यूटर मैंने 20,000 में एक को दे दिया। 10,000 घर में दिया, 10,000 रुपया लेके मैं दिल्ली आया। आके 3,000 रुपया का टिकट, मैं बोला फिर भी देखूंगा। होटल में रहा, तो टिकट जिसने दिया था उसने बोला है कि बहुत त्रास होगा आपको, उसमें भीड़ होगा, आप जल्दी जाइए, 9 बजे 10 बजे से शुरू होगा, आप कम से कम 8 बजे जाइए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वही फंक्शन से मेरा जिंदगी बदला है, मैं यही बताना चाहता हूं आपको। मैंने तो 3,000 रुपया दे के उधर में बैठ के कौन जाएगा, बोलता 18,000 20,000 आदमी का गैदरिंग होगा। तो मैंने क्या किया, 8 बजे गया। 8 बजे गया तो मैंने, जब मैंने पहले आऊंगा, लेकिन देखा है कि तो पूरा मैदान भरा हुआ था बाहर, लोगों का रस, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा है। अब क्या सिग्नल रिसीव करेंगे, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपको दिखाएगा भगवान ने, आपको हर सिग्नल आपको पास में दिखाएगा। आप, मैंने उतर के मुझे अच्छा लगा भीड़ देख के, अरे मैं ठीक जगह पर हूं, अकेला आया हूं, मेरा ग्रुप में से कोई नहीं आया, जो कुछ थोड़ा बहुत ज्वाइन किया था मेरा अपलाइन में, अकेला आया हूं, क्योंकि मुझे देखना है, जैसे बोला था ना, टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। मैंने सोचा मुझे देखना है और करना है। आके जो भीड़ भाड़, दरवाजा तोड़ ताड़ के भी लोग गया, बैठने को जगह नहीं मिल रहा था, तो मुझे कोई परवाह नहीं था। जाके देखा जो स्पीकर को टोनी हेंडरसन, उनको स्टोरीज बताया था, देखा है तो मेरा साथ में रिलेट होता था। वही फंक्शन में मैंने आके रो दिया था, पूरा फंक्शन में मैं रोआ हुआ था। और मैंने बोला है कि ये बिजनेस तो पूरा करेंगे, आसाम का लोग अगर नहीं करेगा तो मैं आसाम छोड़ के चला आऊंगा, फिर भी ये बिजनेस को मैं करूंगा। इस तरह का था। डिफरेंस क्या हुआ इस बिजनेस को, कोई भी नहीं आया है। एक साल मैंने 15%, 18%, कभी 15%, 12% ऐसे था। एक दिन मेरा अपलाइन जो नरेश जी, उस टाइम में डायमंड क्या होता है हम लोग पता ही नहीं देते, कार्लिटन आते थे तो उनको भी इतना पूछते नहीं थे, तो मुझे मालूम ही नहीं था डायमंड क्या है। तो मुझे पूछता था कभी कभी, आपका कितना लेवल पे आया है, मैंने बोला मुझे लेवल में ही मालूम 12%, ये 12% क्या होता है, लेकिन मैं 15% पहुंच गया था। जैसे बोला था ना अभी, आपको काम में फोकस रखो, रिवॉर्ड में नहीं। मेरा रिवॉर्ड में नहीं, मुझे काम क्या करना है उसी। और मेरा सबसे बड़ा चैलेंजेस था मुझसे, बिजनेस से नहीं, पीपल से नहीं। आई हैव टू डेवलप माई सेल्फ। मेरा अगर थिंकिंग में नहीं बढ़ा दूंगा तो मेरा लाइफ में डेवलप नहीं होगा। इसीलिए मैंने बहुत किताब पढ़ा, मेरा लाइब्रेरी है, सिस्टम में जितना किताब है मेरा पास में है, और मैं पढ़ा भी हूं सब।
और प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। ये तो प्रोसेस है। तो क्या हुआ चेंजेस, एक साल मुझे कुछ नहीं हुआ, तो जनवरी 2001 में इसको देखने के बाद में अकेले विद इन 6 months आई बिकम सिल्वर। मेरा ग्रुप में आ गया, अगस्त तक सिल्वर हो गया। देन नेक्स्ट 6 months में आई बिकम प्लेटिनम। नेक्स्ट 2002 में आई बिकम फाउंडर प्लेटिनम। उसी समय तक जब हम लोग को ALS बाहर का फॉरेन ट्रिप मिलना शुरू हो गया था, तो फॉरेन ट्रिप में जाते हैं। मैं यही बताता हूं, आज जो ये बिजनेस सीखा है, बुक्स, टेप्स एंड दोस पीपल जो फ्रंट लाइन में बैठा है, मैं नाम लेके ये करना चाहता हूं, जैसे बिंदु नारंग, उन लोग को पहले कैसेट सुन के एक्साइटेड हुआ था, इन लोग को देखते थे, वही सिल्वर से देखा था मिला, लेकिन आज पहली बार मैंने हाथ मिलाया है। और मैं सोच रहा था मुझे तो नहीं पहचानता है, लेकिन कैसे पहचान लिया है कांग्रेस क्या मुझे नहीं मालूम। सो फ्रेंड, आई वाज सो शाय, स्टिल आई एम ग्रोइंग, आई बिकम एमरल्ड। इसी तो ये प्रोसेस है। मैं बहुत अभी भी मुझे को डेवलप करना है, तो गो डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन, मैंने बोलता हूं जब जितना पिन है मैं भी हासिल करूंगा। ओनली थिंग आई नीड टू ग्रो। तो ग्रो करने में क्या आया है, हम लोग को BBS जो होता है, BBS में जाता है, तो टॉनी सापरा, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो नर्वस भी कर रहा हूं, डोंट वरी। मेरा दोस्त है, उन लोग जो जाते हैं उन लोग के साथ बैठ के कुछ बात सीखता हूं। फिर जाते हैं हम लोग को डॉक्टर खैट्री, हरेश खैट्री, उधर पे जाते हैं, तो उन लोग का साथ से सीखता हूं। हर का कैसे से डायमंड जो है हम लोग को, जो नरेश एंड नीलम भरद्वाज, वो तो है ही साथ में, लेकिन हर से सीखा है। 2 चीज डिफिकल्टीज आए थे, मेरा अपलाइन को बहुत डिफिकल्ट हुआ मुझसे। क्यों? निगेटिविटी के लिए नहीं, कुछ अलग के लिए नहीं, मैं बहुत एग्रेसिव था इस बिजनेस में, बहुत एग्रेसिव, मोर देन जितना चाहिए। मुझे तो ऐसे करके रखते थे मेरा अपलाइन, थोड़ा ठंडा अच्छा हो। यस, मुझे अपलाइन, आप लोग को कैसा मालूम, मुझे अपलाइन को दिक्कत हुआ था। मुझे बोलता होम मीटिंग, मैं होम मीटिंग अभी बुलाता हूं, इन्विटेशन, अरे मैं बुलाता हूं, लोग आ जाते थे। किस तरह से मेरा बुलावा क्या था इन्विटेशन में, लोग बोलते बुलाने से नहीं आता, क्यों नहीं आएगा, मुझे मालूम नहीं बोल, मेरा मरने का, अगर हम नहीं आएंगे तो मेरा डेट इज सर्टेन, तो मैं कैसे बुलाऊंगा। इज फ्रॉम हार्ट। मेरा लोग आते थे मेरा पास में, और मैं कभी निगेटिविटी का साथ में नहीं रहता हूं, ना नू नी, इस मेरा कुछ इसका साथ संबंध नहीं है, अभी भी नहीं है। मैं निगेटिव नहीं सुनता हूं, मैं लोगों को बुराई नहीं करता हूं। मुझे मैं बुलाता हूं तो लोग आगे आते थे, अपलाइन नहीं आते थे, तो उल्टा अपलाइन को मैं फोन करके दम देते थे, धमकी देते थे मेरे, आप आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे मैं आता हूं बाबा, आप रुको, मैं क्या करना पड़ेगा, आप आइए। आते तो इस तरीके से भी बिजनेस डेवलप किया है। प्रोडक्ट बोलता है यूज करना है, प्रोडक्ट सही बात है। प्रोडक्ट जिस दिन मैंने यूज किया, जिस दिन बिजनेस शुरू किया, प्रोडक्ट बाहर फेंक दिया। आगे मैं ऑनेस्ट हूं फ्रेंड, कुछ क्वालिटी है कि नहीं आई डोंट नो, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, जो करता हूं मैं वो कहता हूं। जो बोला है कि आपको यूजर बनना है, मैंने बोला मैं यूजर बन जाऊं। और मेरा घर में कम से कम मेरा जो घर का एरिया है उसमें मैं गार्ड बन गया है मुझे प्रोडक्ट का। मैं बोलता हूं किसी को कभी भी बाहर का प्रोडक्ट लाना नहीं है, वो मुझे काम आया उसमें। फैमिली में एटलीस्ट तो रेस्पेक्ट शुरू हो गया कि मैं दो डुअल कैरेक्टर का नहीं हो। प्रोडक्ट अगर करना है तो करना है, तो वाइफ को भी रेस्पेक्ट आया, बच्चों लोग को भी सोचा हाँ ये तो ठीक है, डेडिकेटेड है। मीटिंग बुलाना है, बुलाया, ठीक सुनना है। मैं ऐसे सुनना शुरू किया था, अड़ोस पड़ोस को खिड़की दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। मुझे सुनना है, सीखना है। आपको मालूम नहीं, मुझे मेरा वो कैरेक्टर ऐसा था। मुझे घर में सबको गाना वाना बंद, बोलते गाना नहीं, मैं तो गाना वाना बंद कर दिया, खुद को सुनना बंद कर दिया, पिक्चर देखना बंद कर दिया, पेपर बंद कर दिया। घर में पेपर ऊपर नहीं आएगा। कभी फैनाटिक होने से काम आता है नहीं, तो वही क्वालिटी मुझे आज आपका सामने लाके खड़ा किया। और मेरा डॉटर जो आज के आई एम प्राउड ऑफ फादर, जो मेरे लोग बोलते, बिकॉज ऑफ दैट एक भी क्वालिटी अगर आपको ले जाएंगे। देखिए जिंदगी में कोई भी काम सही तरीके से मैंने नहीं किया है, सही में नहीं किया। आप अगर बताएंगे धर्म मानना है, मैं कभी धर्म माना नहीं, मैं कभी सोशल एंटी सोशल नहीं, मैं अनसोशल था। कुछ भी लोगों के साथ, घर में कोई गेस्ट आता है मैं बात नहीं करते थे, नहीं, आई डोंट केयर, इस तरह से कुछ भी काम मैंने सही तरीके से जिंदगी में नहीं किया। मेरा डॉटर लोग का ये था, अब हमेशा सब काम उल्टा क्यों करते हो? बोले मुझे नहीं मालूम क्यों करता हूं, मेरा दिल से जो कहता है मैं यही करता हूं। जैसे लोग लिखते हैं ना स्कूल में धर्म, मैं बोलता हूं नहीं मैं एथिस्ट हूं, मैं धर्म नहीं मानूंगा। क्योंकि क्यों डिवाइड किया हम लोग को, क्यों भाग किया, तो मैं इसे धर्म नहीं माना था। एफिडेविट करना पड़ा, पेपर में देना पड़ा,
तो उन लोग बोलते हैं, सब लोग लिखते हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, हम लोग क्या, हम लोग आदमी लिखो। ये उल्टा हो गया ना। मेरा भाई बहन लोग बोलते इन लोग शादी कौन करेगा, मेरा जैसा लोग नहीं है, उन लोग को ढूंढ लेगा। अगर धर्म देख के कोई इन लोग का शादी नहीं करेगा, वो आदमी चाहिए ही नहीं हम लोग को। मतलब मैं उल्टा था आप लोग को, मैं सब कुछ उल्टा था। मैं सोसाइटी का अगेंस्ट में था। हर रूल बनाता है यही सर्कुल पर, तो यही उल्टा आदमी को एक चीज मैंने सही किया है, ये बिजनेस जो किया है, एक दिन सब लोग बोलते हैं एक ही काम जिंदगी में मैंने सही किया, आस्ते आस्ते करके ट्रैक में आना शुरू हो गया। मेरा जो फिलॉसफी है, लोगों को पास वो फिलॉसफी चला जाएगा तो ये दुनिया में अजाब हो जाएगा। मैंने ऐसा काम किया शुरू में इस तरह का सा, तो वही काम अगर कर रहा हूं तो वो काम नहीं है, वो करते जाना है और करते जाना है। वो तो क्या काम है, तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मतलब है मैंने इस तरह का सा किया कुछ काम। एमओ का स्टाफ जाके मुझे बुलाया होटल में, जाके बोल रहा कि मैंने तो मुझे ये भी नहीं पता काम में कल करना है। मैंने डिक्लेयर 1 साल आगे कर दिया था, मैं एमरल हूं, घर में लिख दिया आई एम एमरल। और एमरल में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इंटरेस्ट इसलिए लेके डायमंड लोग को इतना ये कहते मुझे डायमंड जाना चाहिए। मतलब मैं डायमंड करते रहता हूं, एमरल कहीं भी नहीं लिखा था। तो बोला था कि एमरल लिखो, मुझे अगर एमरल जाना ही नहीं लिखूंगा, मैं एमरल लिख दिया, मैं आई एम एमरल। तो अपने आप एमरल देखिए, 1 महीना 2 महीना आगे तक मुझे नहीं मालूम मैं एमरल क्वालिफाई कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। नरेश जी मुझे फोन किया था यूएस स्टेट से, बोल रहा है लतीफ तुम एमरल जा रहा हो। नहीं मैं एमरल नहीं जा रहा हूं। मुझे समझाया नहीं तुम जा रहा हो क्या प्लान, नहीं सर ऐसा नहीं होता है। उल्टा मैंने ये ऐसा जाना पड़ेगा है ना। आपने नरेश जी बार बार मुझे समझा रहा है, अरे आप एमरल जा रहा हो। नहीं मैं एमरल नहीं जा रहा हूं, नहीं हो रहा। वो कब तक, बोला फरवरी तक चला जाएगा। तो फिर देखिए ऐसा आदमी भी एमरल बन सकता है। तो एमओ ऑफिस से दिल्ली से एक एग्जीक्यूटिव गया गुवाहाटी में, मुझे बुलाया, होटल में अपॉइंटमेंट दिया, सिर्फ एमरल लोग को बुलाया और मुझे बुलाया। मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा बाकी लोग तो आए ना एमरल लाया, तो गया तो मुझे बताया लतीफ तुमको ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने बोला करना है करेंगे, कर रहा हूं मैं। आप तो एमरल जा रहे हो क्या, कब, मतलब 2 महीना में आप एमरल जा रहे हो। अरे मुझे नहीं मालूम 2 महीना में मैं एमरल जा रहा हूं। बात क्या है, जैसे बताया था ना बिंदु से थोड़ा आगे, मुझे तो डायमंड जाना है, मुझे एमरल लिख दिया है, द यूनिवर्स विल कंस्पायर। तो यही हुआ है मेरे साथ में, चारों तरफ बदलने लग गया महल। गया बोला उसी टाइम में एमओ ऑफिस में जाके बार बार देखता हूँ सही में गया है कि ना देख लो, और बोला गया है। फिर मैंने सौरभ को दिल्ली में फोन किया, तो सही में मैं एमरल लिखा, हाँ गया हो तो ठीक है। हर रिकॉग्निशन में मुझे बुलाया, मैं फिर डरता भी तो अगर आ जाएगा, नहीं है क्या आज, लेकिन सही में हो गया। ये सिटी जो मिला है अभी मुझे तसल्ली हुआ है। मैं सोच रहा था कहीं गड़बड़ तो नहीं है। एमओ ऑफिस में बुला के हमको बोला कि आपका बिजनेस 100% ग्रोथ हो गया। मतलब नहीं ये दूसरा का कहीं में आएगा। तो ऑल दिस थिंग्स आई नीड टू डेवलप। हर चीज में देखता हूं जो क्राउड है मुझे उधर जाना है। दे आर द रोल मॉडल। अनिल जी बिंदु जी को कभी जैसे हम लोग को एमरल बैठा है कभी भी, लेकिन मैं दिल से उन लोग के साथ में बैठा हूं और मैं चैलेंज करता हूं, इन लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। मेरा पास में तो हर कुछ है, जो भी चाहिए मैं बदल लूंगा। आई एम रेडी टू चेंज। कुछ देखा, मैं लोगों को बोलता हूं, मैं घर में बोलता हूं, मुझे कह दो क्या चेंज करना है, आई एम रेडी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कभी कभी डाउन लाइन आपको मैं ग्रुप में कभी गालियां दिया है, मुझे तो बहुत बार दिया, क्योंकि मैं लड़ता था। 3 महीना आगे मेरा झगड़ा हुआ है। बोला है इतना प्रोडक्ट महंगा है, बहुत दिन उन लोग का साथ में काम किया। दूसरा हमको डायमंड जाने के लिए हम काम कर रहे थे, मुझे डायमंड जाना है, तो डायमंड लेग में काम कर रहे थे। मैं बताता हूं, तो उन लोग बोला है कि प्रोडक्ट, मेरा कुछ शर्त रहता है, क्या प्रोडक्ट अगर पूरा यूज करना होगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। वो इसमें मैं कंसिडर नहीं, बाकी में मैं कर सकता हूं। तो एक आके बोलते हैं प्रोडक्ट क्यों यूज करेगा, आप क्यों नहीं कर रहे हो, बहुत महंगा है। तो बोला मैं तो आपका साथ में नहीं काम करूंगा, मुझे जरूरत नहीं है आप जैसा आदमी। वो बोलते हाँ पहले तो हमको बहुत फुसला के ज्वाइन किया आपने, कितना मीठा बात किया आपने, अभी आप बोलते हो काम नहीं करेंगे। पहले मैंने बोलता देखिए 6-7 महीने आपका साथ में मैंने काम किया, आप करना है और इट्स माई चॉइस, मैं अभी नहीं करूंगा। तो बोलता है आप इसलिए एमरल नहीं जा रहे हो, इसलिए आपको लोग को आपको छोड़ के बोलते एमरल नहीं जाऊंगा, मैं डायमंड जाऊंगा, क्राउन है, आप देखते रहे हो, आया तो मैंने। तो इसी तरह भी होता है, इसके लिए डोंट वरी। लेकिन एमरल जाने का साथ साथ में मैंने क्या डिसाइड किया, आई नीड टू बिकम मोर हम्बल। मुझे और छोटा होना होगा अगर ऊपर जाना है इन द बिजनेस। और मैंने लिस्ट बनाया
कितना कितना आदमी को मैंने हार्ट किया था, मेरा ड्यू टू माई कैरेक्टर लिस्ट बनाया। मैं अचीवर मेरा जो हेल्प किया अच्छा, तो उससे आगे मैं उनको फोन किया है, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मुझे डायमंड जाना है। अगर डायमंड जाना है इन लोगों को पास में, मैंने सबको फोन किया, मैंने जितने लोगों को, और मैंने एक प्रेयर लिखा हुआ है मेरे में, जब भगवान को मैं प्रेयर से बोलता हूं, भगवान मुझे इतना शक्ति दो जब मैं उन लोगों को पास में जाके फॉरगिव, आई कैन आस्क देयर फॉरगिवनेस, सो दैट मैंने बहुत लोगों को हार्ट किया है इस बिजनेस में मैं बहुत लोगों को इस बिजनेस में मेरा गलत ये से बिजनेस से छूट गया है उन लोग, तो मुझे कम से कम उन लोग को साथ रिलेशन डेवलप करने के लिए मुझे स्ट्रेंथ दो। और क्या पॉइंट, मुझे ये छोटा नहीं है, अगर ग्रुप में मेरा कोई आदमी है जो मुझसे साथ झगड़ा करके बिजनेस से बैठा हुआ है, मैं सोच रहा हूं वो ईगो छोड़ दो, ईगो तो बहुत किया जिंदगी में, बहुत ही अभी क्या है, अगर उसका पास में जाएंगे तो मैं छोटा होऊंगा ना बड़ा होऊंगा, मैं तो मैं बड़ा होऊंगा। क्यों? अगर उनका पास में जाएंगे और जाके उसको माफी मांगेंगे, उसको ठीक से बिजनेस करने का सिखाएंगे, उसको वो अगर बिजनेस में दोबारा अच्छा से काम करके बदल जाएगा तो उसको जिंदगी, बिकॉज ऑफ माई दिस डिड, ये काम के लिए उसको जिंदगी बदल जाएगा। अगर नहीं जाएंगे तो इसको जिंदगी के लिए शायद ये बिजनेस में नहीं रहेगा। तो मैंने कौन सा चॉइस किया, आई विल गो टू देम, और मैंने गया जाके माफी मांगा, बाकी उन लोग का काम है। सो फ्रेंड, ये बिजनेस में खुद बार बार, मैं दिन में आप कितनी बार गिरते हो मुझे नहीं मालूम, मैं हर 1 घंटा में एक बार गिरता हूं, मतलब गलती होता है मुझसे, गलती, और हर एक बार मैं रियलाइज कर दो, ओह इसको मुझे ठीक करना है, ये बदलना है। तो गिरना बड़ी बात नहीं, गलती होना ये बात नहीं, फिर दोबारा उसको उठना बहुत जरूरी है। और रिसर्च एंड डेवलप करना है तो घर ही काफी है, घर में खुद को रिसर्च एंड डेवलप कर सकते हो, वो बाहर नहीं चाहिए, अपना घर में सब कुछ है, खुद को पहचानना है। मैंने कहा ना, इस बिजनेस में सब लोग कठिन बोलते हैं, कठिन कुछ नहीं, खुद को समझना कठिन है, खुद को बनाना ग्रो करना कठिन है, यही कठिन है। तो बिजनेस लेकर चेंज होना कठिन है। तो फ्रेंड क्या हुआ, मैं हमेशा जो बोलता है हंसना चाहिए, मैं पागल की तरह सुबह उठकर मैं खुद कोई तो देखेगा पागल तो नहीं, ग्लास में जाके खुद को देखता हूं, हंसता हूं, ट्राई किया, लोगों का देखने से स्माइल करता हूं, हमेशा जितना सोचा है मैंने, कितने हम्बल कर सकते, यही काम है बिजनेस में, प्लान शो करना चाहिए। अभी कोई भी हो, मैं प्रोस्पेक्टिंग में अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, मैं फॉलो अप में अच्छा हूं, हर चीज में मैं अच्छा हूं, मेरा अलग ही ये सिस्टम विद इन सिस्टम, मैं इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस बिजनेस को तो आगे ले जाने के लिए सीखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ये बिजनेस मैं तो कल भी बोल रहा हूं कि ये बिजनेस शब्द ही मुझे इसमें पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से आया हूं ना। आप लोग जो बिजनेस में नहीं, बिजनेस का मतलब एक अलग डेफिनेशन है हम लोग को ये में, तो मैं ये बिजनेस सभी यहां इस्तेमाल यहां यूज नहीं करना चाहता हूं। अपॉर्चुनिटी बोलता हूं, कभी बिजनेस आ जाता है, बात अलग है। सो इट्स ए रिलीजन, मैं रिलीजियसली करता हूं, स्पिरिचुअली, ये मेरा धर्म है अभी। और मैं अभी बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस मैं कोई मंदिर मस्जिद चर्च में नहीं जाता हूं, मैं कोई अलग प्रेयर करता हूं, वो लोगों का साथ में जो मिलता है मैं प्रेयर कर दो, गॉड रिफ्रेश एंड ग्लैडन माय स्पिरिट, प्यूरिफाई माय हार्ट, इल्यूमिन माय पावर, I lay all my affairs in thy hand, thou art my guide and my refuge. I will no longer be sorrowful and grief, I will be a happy and joyful being. Oh God, I will no longer be full of anxiety, nor will I let trouble harass me. I will not dwell in the unpleasant things of life. Oh God, thou art more friend to me than I am to myself. I dedicate myself to thee, O Lord. Easy business है, this is the business. यही business है, to unite the whole mankind. पूरा लोगों से मुझे बहुत प्यार है और इसलिए मुझे ये बिजनेस करने में आसान हुआ है। मैं खुद को पहले नहीं देखता हूं, मैं अलग को देखता हूं, दूसरों को हंसी को ज्यादा महत्व देता हूं। मेरा बोला ना कुछ बहुत सारे उल्टा कैरेक्टर हो, थोड़ा सा ये जो लोगों के साथ बैठकर अच्छा लगता है, मैं लोगों को, लेकिन इसका मतलब है ना आई वांट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, ये भी नहीं, मैं मेरा काम से पर सब लोग के साथ में मैं प्रेयर करता हूं, पूरा दुनिया का लोगों के लिए। कभी किया आपने मुझे नहीं मालूम, मैं पूरा दुनिया का लोगों के लिए प्यार करता हूं, प्रे करता हूं एवरी लोगों के लिए। यहां मैं जितने जाऊंगा मैं आपके लिए भी प्रेयर करूंगा, मैं सब हर आदमी को मैं चाहता हूं कि मुझे जो खुशियां मिली है अभी मेरे जो लाइफ में आए हैं ये आप सब लोग को मिले। मैं भगवान को तो प्रे करता हूं, आप भी करिए सबको। ये बिजनेस इज दैट वे। आज क्या मिला है, फॉरेन ट्रिप, फॉरेन में जब जाता हूं सब, अरे जिस लोग को डरते थे वो आप गले मिलते हैं, हक करते हैं, इससे क्या है। आज सबसे बड़ा अच्छा लगा है जो मेरा जो प्रत्याशी मैं मैं आके इसमें
खड़ा होके देखा, जो बात कहा है जिसने, आई एम वेरी हैप्पी, इस बिजनेस को पैसा तो आएगा आएगा, बट द पीपल, द ओन, घर का जो लोग है, जो खास करके मेरा 3 बेटियों, मेरा आप लोग ड्रीम, मैं ड्रीमर था, ये ड्रीम ड्राइवर बिजनेस है, लेकिन मैं इस बिजनेस को मोटिवेटिंग फैक्टर जो मैं डॉटर से, एंड आई बिल्ड इट आउट ऑफ फियर, डर से मैंने बिल्ड किया था, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। ड्रीम तो है, लेकिन ड्रीम से भी मुझे ज्यादा मोटिवेट किया डर, अगर इस बिजनेस को मैं नहीं करूंगा तो मुझे ऐसे ही जाना है और मेरा हालात बहुत खराब होगा, और मैं इस तरह का साथ जिंदगी का ये लेना नहीं चाहता हूं। मैं आई वांट टू बी विनर, ये बिजनेस आपको भी विनर बनेगा, एवरीबॉडी, एंड वी कैन गो, एवरीबॉडी वी कैन गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। While the techniques and approaches suggested have worked for others, no one can guarantee that these techniques and approaches will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been published independently of Amway India Enterprises Private Limited. Purchase of the CD is optional, duplication is prohibited and against the law.